Text-based exercises. Thinking about the text. Question first. How did the two baby birds get separated? Two baby birds separate कैसे हुए? अलग अलग कैसे हो गए? A strong wind blew away the birds and landed them at different places. एक तेज हवा तूफानी हवा उसने उन दोनों बर्ड्स को उड़ाकर दूर ले गई. इन दिस वे दे गॉट सेपरेटेड. और इस तरह से वो सेपरेट हो गए. क्वेश्चन 2. वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? उन दोनों को कहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया. One of the birds found a home near a cave of the robbers, and the other landed outside a rishi's ashram. एक बर्ड जो था वो एक गुफा के बाहर उसने अपना घर बनाया जिसमें रॉबर्स रहते थे, लुटेरे रहते थे, और दूसरे को एक ऋषि के आश्रम के बाहर जगह मिल गई रहने के लिए. क्वेश्चन 3. What did the first bird say to the stranger? पहले बर्ड ने स्ट्रेंजर से क्या कहा? The first bird said nothing to the stranger. पहले परिंदे ने स्ट्रेंजर से कुछ नहीं कहा. Rather he told the robbers about the stranger. उसने लुटेरों से स्ट्रेंजर के बारे में कहा. It asked them to rob him of his jewels and horse quickly. उसने ये कहा कि उसे जल्दी से लूट लिया जाए, उसके जेवर, उसके जवाहरात और उसका घोड़ा जल्दी से लूट लिया जाए. क्वेश्चन 4. What did the second bird say to him? दूसरे बर्ड ने उससे क्या कहा? The second bird welcomed the stranger to the ashram. दूसरे बर्ड ने उस स्ट्रेंजर को वेलकम किया आश्रम में. He asked him to go inside, take cold water and make him comfortable. उसने उसे कहा कि अंदर आ जाओ, ठंडा पानी पियो और अपने आप को कंफर्टेबल फील करो. क्वेश्चन 5. How did the rishi explain the different ways in which the birds behaved? ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया दोनों परिंदों के बिहेवियर को जो कि बहुत ही डिफरेंट था. The rishi said that the bird living with the robbers behaves like them and talks about robbing people. ऋषि ने ये कहा कि जो बर्ड रॉबर्स के साथ रहता है वो बिहेव उन्हीं की तरह कर रहा है और बातें कर रहा है लोगों को लूटने की. But the bird outside the ashram has repeated what he has always heard. लेकिन वो जो बर्ड आश्रम के बाहर रहता है उसने वही रिपीट किया जो वो रोज सुनता है. He welcomes the people to the ashram. वो लोगों का स्वागत करता है आश्रम में. क्वेश्चन 6. Which one of the following sums up the story best? इनमें से कौन सा sums up कर रहा है स्टोरी को सबसे अच्छा?
A bird in hand is worth two in bush. One is known by the company one keeps. A friend in need is a friend indeed. तो इसमें सबसे बेस्ट जो सम अप कर रहा है स्टोरी को वो है वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। सो जैसी संगत होगी वैसा ही असर होता है। So language work. Fill in the blanks with appropriate words. The strong wind dashed the birds away deep into the forest. तो क्या आएगा? Flew. The strong wind flew the birds away deep into the forest. One of the birds dash outside our Rishi's ashram. तो landed outside our Rishi's ashram. The king seemed dash to hear a similar voice again. The king seemed amazed to hear a similar voice again. The heavy branch dashed the nest and killed the bird. The heavy branch hit the nest and killed the bird. Life is full of surprises. So, write down the meaning of the following phrases. अब ये इन phrases के meaning देखते हैं. First is blew away. Blew away means flew someone away by force. तो by force किसी को उड़ा के दूर ले जाना उसे कहते हैं blew away. Second is rode after. Rode after means chased someone on horseback. Rode after का meaning हो गया किसी का पीछा करना घोड़े पे बैठकर. Rode after. Then rode away. Third is rode away. Rode away का meaning होता है rode the horse and went away. Means घोड़े को दौड़ाना और चले जाना. Then fourth is look up. Look up means looked above. Means ऊपर देखना. Then fifth one is make friends. Make friends का meaning होता है to become friendly with someone. किसी के साथ friendly होना. Writing. Sum up the moral of the story in your own words. इस स्टोरी का हमें क्या मॉरल मिलता है? A man is known by the company he keeps. एक इंसान उसकी कंपनी के द्वारा ही जाना जाता है. Then second is write 100 to 200 words on a man is known by the company he keeps. तो 100 या 200 वर्ड्स में हमने लिखना है इस पे लिखेंगे हम 100 या 200 वर्ड्स. सो देखते हैं. Most of us become friendly with those who have similar natures and tastes. हम में से ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ फ्रेंडली होते हैं जिनका टेस्ट और नेचर हमारे जैसी होती है, सिमिलर होती है. बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि एक जैसे पंखों वाले परिंदे हमेशा झुंड में ही रहते हैं. One likes to keep company with those who have similar tastes and aptitudes. हर कोई पसंद करता है ऐसी कंपनी जहाँ पे सिमिलर टेस्ट और एप्टीट्यूड्स वाले लोग हों.
It is rather impossible to be friendly with anyone whose tastes and likes are different from ours. तो ऐसा इम्पॉसिबल सा लगता है कि हम ऐसे इंसान के साथ फ्रेंडली हों जिसका टेस्ट और लाइक हमसे बिल्कुल अलग हो. स्कॉलरली पीपल आर फ्रेंडली विद स्कॉलर्स. जो स्कॉलरली पीपल होते हैं वो स्कॉलर्स के साथ ही फ्रेंडली होते हैं. ब्रेव पीपल विल सीक द कंपनी ऑफ अदर ब्रेव पीपल. और बहादुर लोग बहादुर लोगों की कंपनी की तलाश में रहते हैं. अ फ्रेंडशिप बिटवीन अ ब्रेव एंड अ कॉवर्ड इज अनथिंकेबल. अगर अगर हम ऐसी फ्रेंडशिप के बारे में सोचेंगे कि एक बहादुर हो और दूसरा बुज़दिल हो तो ये सोचना इम्पॉसिबल सा है. अ ड्रंकर्ड विल फील एट होम इन द कंपनी ऑफ अदर ड्रंकर्ड्स. एक पीने वाला जो है, एक शराबी जो है, वो शराबी की ही कंपनी में अपने आप को अच्छा फील करेगा. अ थीफ इज़ फ्रेंडली विद अ थीफ. और एक चोर के साथ ही फ्रेंडली होगा. When we see a few persons, we can easily make out that they are people of similar tastes, opinions and preferences. जब हम देखते हैं कुछ लोगों को तो हम बहुत ईज़ली ये गेस कर सकते हैं कि ये जो लोग हैं इनका सिमिलर टेस्ट होगा, ओपिनियन भी सेम होगा और प्रेफरेंसेस भी सेम होंगी. You will find a good man often in the company of good men. आपको अक्सर ऐसा ही मिलेगा कि एक अच्छा इंसान अच्छे लोगों की कंपनी में ही आपको मिलेगा. Idlers will be friendly with idlers. और बेकार लोग बेकारों की कंपनी में ही आपको दिखेंगे या मिलेंगे. The bad bird in the story was friendly with a gang of robbers. जो बुरा परिंदा था वो इस स्टोरी में गैंग ऑफ रॉबर्स के साथ फ्रेंडली था. The good bird in the story was friendly with a rishi. और जो अच्छा बर्ड था वो ऋषि के साथ फ्रेंडली था. It is correct to say that a man is known by the company he keeps. और इसलिए ये कहना सही होगा कि एक इंसान जैसी कंपनी में रहता है उसकी वैसी ही पहचान बन जाती है. ग्रामर वर्क. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. When the exact words used by a speaker are reproduced within quotes or quote, unquote, it is called direct speech. Please avoid using inverted commas begin and inverted commas closed. तो जब बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड जो कि स्पीकर के होते हैं जब हम उन्हें रिप्रोड्यूस करते हैं कोट के साथ या अनकोट के साथ उसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच. और हम इसमें अवॉइड करेंगे इन्वर्टेड कामास बिगिन और इन्वर्टेड कामास क्लोज्ड. जैसे फॉर एग्जांपल, द टीचर सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय. तो ये है डायरेक्ट स्पीच. अब देखते हैं रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विच आर पुट विद इन कोट्स इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं स्पीकर के जो कि कोट्स के अंदर हम रखते हैं उन्हें कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. Who says and who says to whom. किसने कहा और किससे कहा.
The verb that introduces the reported speech is called reporting verb. और वो verb जो इंट्रोड्यूस करती है रिपोर्टेड स्पीच को उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. Basic rules. Rule number first. If the reporting verb is in the present or future tense, अगर reporting verb present या future tense में होगी, the tense of the reported speech remains unchanged, though pronouns changed. तो जो tense होगा reported speech का वो चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज्ड रहेगा, सिर्फ प्रोनाउंस जो हैं वो चेंज होंगे. जैसे डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल लेते हैं. द प्रिंसिपल सेज कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन इंग्लिश टीचर विल टीच नरेशन ऑन मंडे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज. तो ये है डायरेक्ट स्पीच. नाउ इनडायरेक्ट स्पीच. द प्रिंसिपल सेज दैट इंग्लिश टीचर विल टीच नरेशन ऑन मंडे. तो इस तरह से हम इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच. अब इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो फ्यूचर टेंस में है, इसीलिए टेंस चेंज नहीं होगा. इस तरह से हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट स्पीच. रवि विल से आई लाइक फिल्म्स. अब इसका इनडायरेक्ट. रवि विल से दैट ही लाइक्स फिल्म्स. तो यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस में है तो ये चेंज नहीं होगा, वैसा ही रहेगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, आई की जगह ही आ जाएगा. इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं. सोना सेज हर फादर इज एट ऑफिस. तो इसका क्या आएगा. सोना सेज दैट हर फादर इज एट ऑफिस. नाउ रूल्स 2. रूल 2. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस. अभी हमने ऊपर देखा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का, जिसमें कि जो टेंस है फिर वो चेंज नहीं होता. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगी पास्ट टेंस में, द टेंसेज इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस. अगर पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो फिर जो टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो भी चेंज्ड हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस में. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में. इसकी एग्जांपल देखते हैं. अनु सेड शी स्टडीज लेट इन द नाइट. अब इसमें अनु सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये पास्ट टेंस में है, एंड शी स्टडीज लेट इन द नाइट ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब ये चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में. जैसे अनु सेड दैट शी स्टडीड लेट इन द नाइट. तो सिंपल प्रेजेंट चेंज हो गया सिंपल पास्ट में. इसी तरह से नेक्स्ट है. अंधलीप सेड सुकीनी वर्क्स वेरी हार्ड. सो इसमें भी अंधलीप सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी वो है सिंपल प्रेजेंट में. तो इनडायरेक्ट बनेगा अंधलीप सेड दैट सुकिनी वर्कड वेरी हार्ड. तो सिंपल प्रेजेंट चेंज हो गया सिंपल पास्ट में. यहाँ पे जो वर्क था प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब ये चेंज हो गया वर्कड में, पास्ट सिंपल में चेंज हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई यहाँ पे.
इसी तरह से however if the reported speech conveys some universal truth or a habitual fact, the simple present tense in the reported speech remains unchanged. लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट होगा तो फिर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, अब ये चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसी तरह से रहीम सेड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एक हैबिचुअल फैक्ट है, तो ये भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। रहीम सेड दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो प्रोनाउन जो है आई वो चेंज हो गया ही में। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, अब ये नीचे जो नरेशन है इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है द टीचर सेज राहुल विल पास, सो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फ्यूचर में है, तो इसमें क्या होगा, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर सेज दैट राहुल विल पास। इसी तरह से द सर्वेंट विल से डिनर इज रेडी, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में, तो यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा। द सर्वेंट विल से दैट डिनर इज रेडी। थर्ड देखते हैं मोना सेज सौना विल डू हर वर्क ऑन ट्यूसडे। अब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है एंड रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में, तो यहाँ पे भी ये चेंज नहीं होगा, तो होगा मोना सेज दैट सना विल डू हर वर्क ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट देखते हैं सबा सेड आई विल जॉइन द कॉलेज। अब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फ्यूचर में, तो अब यहाँ पे चेंज होगा टेंस, तो हम क्या लिखेंगे सबा सेड दैट शी वुड जॉइन द कॉलेज। इसी तरह से यहाँ पे हमने विल को वुड में चेंज कर दिया। इसी तरह से रमा सेज आई विल स्टडी एट यूनिवर्सिटी, तो इसका क्या होगा रमा सेज दैट ही विल स्टडी एट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो प्रेजेंट में थी, तो चेंज नहीं होगा टेंस। इसी तरह से बशीर सेड आई विल टेक अप साइंस सब्जेक्ट्स, तो ये पास्ट में है, तो टेंस जो है कॉरस्पॉन्डिंग टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे बशीर सेड दैट ही वुड टेक अप साइंस सब्जेक्ट्स, तो विल चेंज हो जाएगा वुड में, शैल चेंज हो जाएगा शुड में। इसी तरह से राजा विल से आई कैन नॉट स्टडी मैथमेटिक्स, तो ये फ्यूचर में है, तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, तो इसका आएगा राजा विल से दैट ही कैन नॉट स्टडी मैथमेटिक्स। इसी तरह से सुहाना विल से माय फेवरेट एक्टर इज शाहरुख खान, सो यहाँ पे भी ये फ्यूचर टेंस है, तो टेंस चेंज नहीं होगा बट सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा। सुहाना विल से दैट हर फेवरेट एक्टर इज शाहरुख खान। Then the ninth part is Ragini will say I want to become a painter, तो यहाँ पे भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर में है, तो टेंस चेंज नहीं होगा। Ragini will say that I want to become a painter.